لاڑکانہ میں مسافر بردار ویگن ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی۔ ایک مسافر جاں بحق اور بچی اور خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ویگن الٹنے کا واقعہ لاڑکانہ ویگن روڈ اور مری چوک پر پیش آیا اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ عاشق پٹھان موجود ہیں۔ عاشق پٹھان بتائیے گا۔ عاشق پٹھان کا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی عاشق اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا افسوسناک واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ سر یہ افسوسناک واقعہ جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ پہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص کلوڑوں جو ہے وہ زخمی ہوا ہے اور اس میں 9 افراد جو ہیں وہ اپنا زخمی ہوئے ہیں۔ ایک فرد جو ہے کلوڑوں وہ جاں بحق ہوا ہے اور اس پہ ویگن جو ہے وہ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی ہے اور الٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ان زخمیوں کو جو ہے وہ شعبہ حساس لاڑکانہ لایا گیا اور وہاں پہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جی وہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عاشق۔ یونیورسٹی آف گجرات میں طالبہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ، وائس چانسلر کی جانب سے ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف کارروائی کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، یونیورسٹی آف گجرات میں طالبہ کو ہراساں کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ وائس چانسلر کی جانب سے ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف کارروائی کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ عبدالسلام مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا عبدالسلام مرزا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ چند ماہ قبل BBA کی جو 5ویں سیمیسٹر کی طلبہ تھی نوشین، اس نے وائس چانسلر ڈاکٹر شبر عتیق کو جو ہے درخواست دی تھی کہ ڈپٹی رجسٹرار ساجد تاڑر اور فضل عمر نامی جو ملازم ہے اس نے آفس میں بلا کر جنسی طور پر ہراساں کیا اور میرا موبائل فون چھین کر جو ہے نازیبا تصویریں اس میں سے ڈال کر میرے دیگر دوستوں کو شیئر کی۔ بعد ازاں ڈپٹی رجسٹرار جو ہے ساجد تارک کئی عرصے تک مجھے بلیک میل بھی کرتا رہا، جس پر دوسری جانب جو ہے وائس چانسلر جامعہ گجرات کے ڈاکٹر شبر عتیق نے جو ہے سینڈیکیٹ جو اجلاس تھا اس میں ڈپٹی رجسٹرار ساجد تارک کا جرم ثابت ہونے پر جو ہے اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم جاری کرتے ہوئے پروفیسر عادل رشید کی سربراہی میں 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دے دی ہے اور دوران اجلاس جو ڈپٹی رجسٹرار تھے ان سے طلبہ کا فون بھی برآمد کر لیا ہے۔ تاہم جامعہ گجرات میں اس وقت جو دیگر طلبہ ہیں ان میں خوف و ہراس ہے اس حوالے سے، اور ان کے والدین کا بھی کہنا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ایسے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، یہ مطالبات والدین کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آفت آباد میں تحصیلدار کے فرائض ٹائیگر فورس کے جوان ادا کرنے لگے ہیں۔ جس دکاندار کا چاہیں چالان کریں یا من پسند کو چھوڑ دیں۔ مقامی تاجروں نے احتجاج کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ انتظامیہ زرعی معاملات میں مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ زاہد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زاہد سہیل، بتائیے گا کیا الزامات سامنے آ رہے ہیں دکانداروں اور تاجروں کی جانب سے؟ جی، دکانداروں اور تاجروں کے مطالبات یہ ہیں کہ سینہ زوری اور زبردستی کا جو یہ مظاہرہ جو آج حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیا میں پیش آیا ہے، جہاں پر تحصیلداروں نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ ٹائیگر فورس کے جوانوں کو سونپ دیے ہیں، جنہوں نے پسند اور من پسند کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے پسندیدہ افراد کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو ہے مخالفین کو جو ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ نوٹس دے دیے، جس کی وجہ سے علاقہ سراپا احتجاج ہیں اور مظاہرین کا اعلیٰ حکام سے یہ کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس کے جوان جو ہیں ان کی حدود میں متعین کی جائے اور تحصیلداروں کی جو اپنے فرائض ہیں وہ خود سر انجام دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آفت آباد کے بعد خبر شامل کریں گے جیکب آباد سے۔ جیکب آباد میں بدامنی اور ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے 27 افراد کا سندھ بلوچستان پنجاب سرحدی قصبہ آدم خان میں احتجاج سامنے آیا ہے۔ قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس میں کالی بھیڑیں ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور محکمے کو ان کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے، اور یہ مطالبات سامنے آئے ہیں اس مظاہرے کے اندر۔ کپاس سفید چاندی، کاشتکاروں کے چہرے پر مایوسی کی سیاہیاں کس نے گھول دی ہیں، اور حالیہ مونسون بارشوں اور غیر معیاری زرعی ادویات کے باعث کپاس کی فصل کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ بعد میں اربوں روپے کی روئی امپورٹ کرنے والی حکومت کو ابھی سے خیال کیوں نہیں آ رہا؟ کاشتکاروں کے نقصان کی تلافی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ تمام مسائل بتائیں گے ہمارے نمائندے نواب شاہ سے ضیاء الرحمان۔ جی بالکل،
حالیہ بارشوں کے نتیجے میں فصلوں کو خصوصاً کپاس کی فصل کو جو بے نظیر آباد ضلع ہے یہاں بہت نقصان پہنچا ہے۔ قاضی احمد کی اگر میں بات کروں، قاضی احمد اور اس کے اطراف میں کھڑی فصل جو بھٹی کی جسے کپاس کہا جاتا ہے کہ شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہاں ہاری اور ذمہ دار جو ہیں علاقے کے، ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ ہمارے لیے کوئی امدادی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ دوسری ایک قابل ذکر بات ہے کہ صرف بارشیں ہی نہیں بلکہ غیر معیاری جو زرعی ادویات ہیں اس کا استعمال بھی فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو فوری طور پہ زرعی ادویات کی کوالٹی جو ہے اسے بھی چیک کیا جائے، جو اسپرے میں دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں انہیں بھی چیک کیا جائے، تو جس سے فصلوں کو ہونے والا جو ناقابل تلافی نقصان ہے اس میں کمی ہو۔ اس وقت جو ذمہ دار اور ہاری ہے ان کا کہنا ہے کہ فصلوں کے جو نقصان پہنچا ہے اور خصوصاً بے نظیر آباد ان متاثرہ ضلعوں میں شامل ہے جہاں بارشوں نے کافی تباہی مچائی ہے، تو فوری طور پر ہاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے کوئی امدادی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ کئی ہاریوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پہ حکومت سندھ ہماری مالی امداد کا اعلان کرے۔ جی شاہدرہ ٹاؤن پاور ہاؤس میں رہائشی کالونی ابھی بھی بارشی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ واسا نے بارش اور سیوریج کا پانی نکالنے کے لیے شہریوں سے 20,000 روپے مانگ لیے ہیں۔ رہائشی کالونی کیچڑ اور کچرا کنڈی بن چکی ہے۔ یہاں پر سانپ، بچھوؤں اور دیگر آوارہ جانوروں کا بسیرا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے طارق بٹ ہمارے سے موجود ہیں۔ طارق بٹ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ شاہدرہ ٹاؤن کا علاقہ پاور ہاؤس ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں گھر بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بارشیں ختم ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں لیکن پاور ہاؤس کی آبادی سے پانی بارش کا جو آج بھی نہیں نکالا جا سکا۔ لوگوں کے گھروں میں اس وقت سانپ اور بچھو جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر سے تقریباً 3 فٹ سے لمبا جو سانپ نکلا جس کو رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو مار ڈالا۔ یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بالکل پانی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاس وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی 3 سے 4 فٹ گہرے پانی میں وہ گر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں کے رہائشیاں ان کے جو مین دروازے ہیں وہ سارے کے سارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لوگوں ایک دوسرے کی چھتوں سے گزر کر اپنے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو واسا اہلکار ہے انہوں نے یہاں کے رہائشیوں سے پانی نکاسی آپ کے لیے 20,000 روپے رشوت طلب کی، جس کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ 500 روپے دیہڑی کے مزدور ہیں اور ان کو 20,000 روپے کہاں سے دیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا واسا حکام نے بالکل اس طرف رخ نہیں کیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں میں قید ہو کے رہ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر سوپور میں بھارتی فوج کی زیر حراست عرفان احمد ڈار کی شہادت بٹہ مالو میں 43 سالہ کشمیری خاتون اور 3 نوجوانوں کی شہادت کے خلاف مظفرآباد میں احتجاج کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل فورم فرام جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں و کشمیر کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنا اور ریلی نکالی گئی ہے۔ شرکاء نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف دنیا میں آواز اٹھائی جائے گی۔ قاضی عبدالباری ہمارے سے موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی قاضی عبدالباری بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے شہر سوپور میں عرفان احمد ڈار کی بھارتی فوج کے ہاتھوں دوران حراست شہادت اور کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے مرکزی علاقے بٹہ مالو میں 40 سالہ کشمیری خاتون اور دیگر 3 نوجوانوں کے قتل کے خلاف انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹ جموں کشمیر کے زیر اہتمام برہان بانی چوک میں بھارت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ بھارت مخالف احتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کی مسلسل شہادتوں اور جبری گمشدگی اور گھروں کو برباد کیے جانے اور بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ مظاہرین نے قصبے اور بینر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر عالمی برادری سے بھارت کے مخالف اقدامات اٹھانے کے مطالبات درج تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دھرنے سے چیئرمین انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس محمد احسن اور سری نگر سے انہوں نے جو ہے وہ ٹیلی فون خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ یہاں پر نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈال رہا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ قدغنے ہیں، حراسی مراکز قائم کر کے عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور یہاں پر کشمیری جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے قاضی عبدالباری۔
चुनियोट के इलाके लालिया में नहर शेखों में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है और पानी के तेज़ रेले से 50 से ज़ायद एकड़ का रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। काश्तकारों का कहना है कि आए रोज़ नहर में शगाफ से उनकी खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचता है। आपके सामने भी मनाजिर भी हैं और आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि ये जो नहर है उसमें शगाफ पड़ने के बायस किस तरह से फसलों की तबाहकारी इस वक्त जारी है। आए रोज़ ही ये वाक़यात हमें देखने में आ रहे हैं और इसके तदारुक के हवाले से इन फसलों की हिफाजत के हवाले से कोई इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से नज़र नहीं आ रहे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा हुआ है। भारत और बांग्लादेश में कोरोना की तबाहकारियों के बायस आलमी मंडी में ताजरों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है और इससे एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बेहतर हुई है। फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल हब है पाकिस्तान का और सनती जोन है, पाकिस्तान का अहम सनती जोन है जहाँ पर गारमेंट्स की बड़ी बड़ी लूमें हैं और फैक्ट्रियाँ हैं और बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नुमाया हैं फैसलाबाद की जानिब से। और अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के बायस जहां पूरी आलमी मंडी जो है वो बंद है तो पाकिस्तान ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जो डिमांड है उसको पूरी दुनिया में पूरा कर रहा है और इसी नतीजे में तमाम आलमी मंडी के जो जितने भी ताजर हैं उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सजाद अली। सजाद अली, बताइएगा किस तरह से फैसलाबाद पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रहा है? जी, कोरोना वायरस की वबा की वजह से बंद होने वाली फैक्ट्रियों का काम दोबारा बहाल होने के बाद टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में मुस्बत असरात मरतब हो रहे हैं। फैक्ट्री मालकान के मुताबिक भारत और बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज कोरोना वायरस की वजह से बंद होने के बायस हमारे मुल्क में एक्सपोर्टर्स के पास कपड़े और गारमेंट्स के आर्डर्स में 40% इजाफा हो चुका है। लेकिन फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम होने और गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल महंगा होने के बायस एक्सपोर्ट आर्डर पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की जानिब से बैरूनी ममालिक से दरामद किए जाने वाले कपड़े पर टैक्स में छूट के बाद अब आसानी पैदा हो रही है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत बिजली के नरखों में फैक्ट्रियों को मजीद रिलीफ दे ताकि बंद पड़े हुए यूनिट भी बहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आगे बढ़ें और अपने नाज़रीन को बताएं कि औलिया के शहर मुल्तान में आजकल पहिए वाले चाय के बेहतर चर्चे हैं और बहुत ही ज़्यादा चर्चे हैं। इस चाय को लोग बहुत शौक़ से पीते हैं और 65 साला बाबा फलक शेर साइकिल का पहिया चलाकर कोयले से चाय बना रहे हैं। किस तरह से ये चाय बनाई जा रही है बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान कुरैशी, जो इस वक्त चाय के होटल पर ही मौजूद हैं। तो बताइएगा नाजरीन को शाहिद इमरान के किस तरह से ये साइकिल वाली चाय बनाई जा रही है। बिल्कुल, गला मंडी के गेट पर जो है 65 साला बाबा फलक शेर ने जो है अरसद रात से जो है एक छोटा सा चाय का होटल बनाया हुआ है और ये मुनफरिद चाय है। इसलिए मुनफरिद है कि ये जो है साइकिल के पहिए के ज़रिए जो है कोयले डालकर जो है चाय की तैयारी की जाती है। इस वक्त हमारे साथ बाबा फलक शेर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। बाबा जी, कैसे ये ख्याल आया साइकिल के पहिए के ज़रिए चाय बनाने? ये जब गैस महंगा हुआ ना तो कोई खर्चा पानी भी नहीं बन रहा था, फिर जहन में आया भाई ये अंगीठी बनाए कोयले वाली, अंगीठी बनाई कोयले वाली, बिलोर लाए। फिर ख्याल आया कि इसके साथ साइकिल वाला पहिया अटैच करें। फिर वहाँ गए वर्कशॉप में ये पहिया अटैच कराया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला सही चल रहा है। चाय का जायका भी बहुत अच्छा है, गैस से कई दर्जे अच्छा है, क्योंकि ये कोयला है, ये बहुत पुरानी सौगात है। गैस जो है 2-4 उबाले है, चाय तैयार है। ये नीमी आग पे चाय पकती है, बहुत अच्छी, जायका भी बहुत अच्छा होता है। लोग पसंद भी बहुत करते हैं, दूर दूर से आते हैं कोयले वाली चाय। इनकी बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि एक पुरानी सकाफत है जो है चाय जो है बनाई जाती है इस कोयले के ज़रिए। साइकिल के पहिए को इन्होंने जो है इस्तेमाल किया है और ये गैस जो है महंगी होने की वजह से इन्होंने ये सिस्टम तैयार किया है और दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं चाय से। और बड़े मज़े की चाय जो ये तैयार की जाती है और जो है यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आती है, चाय पीती है और इस चाय से जो है कोयले वाली चाय से लुत्फ़अंदोज़ होती है। जी, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मेन शाहराहों समेत शहर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल।
जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 4.5 लाख से ज़ायद आबादी है, जबकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तमाम सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। मेन सड़कें हों या शहर के अंदर की सड़कें हों, तमाम सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसी हवाले से हम शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि सड़कें टूट फूट का शिकार है, हुकूमत क्या कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 साल हो गए नून लीग की गवर्नमेंट को, दावे तो उनको बड़े बड़े थे, तो अभी तक जो मीरपुर की सड़कों का हाल है, जिस तरह आपने कहा कि खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। मेन जो जितनी भी मीरपुर की शाहराएँ हैं, जिस तरह ये देख लें, लामा इकबाल रोड देख लें, अपना आर रोड देख लें, तो ये जिस पे हम खड़े हैं, तो इसका इन रोडों का कोई पुरसान हाल नहीं, सिर्फ यही बातों की हद तक ही है इनका, तो नारों की हद तक, बाकी तो अमली इन्होंने कोई अभी तक काम नहीं किया। ये तारकीन वतन का शहर है, तो इसको देखा जाए अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, मीरपुर के इमेज को बेहतर करने के लिए बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर का ये चेहरा है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक रोल मॉडल होना चाहिए। इन्होंने इसकी हालत ही जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि हुकूमत जब आती है तो बड़े बड़े दावे करती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर को मिनी लंदन भी कहा जाता है, लेकिन इसकी सड़कें जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी की जो कीमती गाड़ियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। जी, सवात की मसरूफ़ तरीन शाहराह मैंगोरा बाईपास पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। सयाहों की आमद व रफ्त, हर वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। अब्दुल्ला शीरीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल्ला शीरीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मैंगोरा बाईपास पर मौजूद हूँ और ट्रैफिक जाम होना यहाँ पर रोज़ का मामूल बन चुका है, क्योंकि तकरीबन ये चारों अतराफ से यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो जनजक है वो यहाँ पर ही जमा हो जाता है, क्योंकि दरिया स्वात की उस पर तकरीबन 7.5 लाख आबादी है और वो यही रूट मैंगोरा शहर को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर मुकामी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अगर दरिया स्वात के दोनों अतराफ जो है ना ब्रिज कायम कर दी जाए, एक मामबेरे के मुकाम पर, एक हज़ारा के मुकाम पर, तो इससे जो ट्रैफिक का जो संगीन मसला है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हल हो सकता है। यहाँ पर आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि सयाह भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ जो स्कूल की तलबा है या जो अस्पताल को मरीज़ ले जाने का जो यही भी एक वाहिद रास्ता है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो लोगों ने यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके दोनों तरफ ब्रिजेस कायम कर दिए जाए, तो इससे जो ट्रैफिक का जो संगीन मसला है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जी, लाहौर के बाद गुजरांवाला में भी वाटर फिल्टर ख़राब हो गए। शहरी पीने के पानी को बूंद बूंद को तरस गए हैं। स्टैंड समेत दीगर अवामी मकामात पर पीने का पानी दस्तयाब नहीं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब तो ज़िले इंतज़ामिया वज़ीर आला के दौरे को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म नज़र आती है और यहाँ पर शहर भर में तज़ीनो और राइश की जा रही है ताकि वज़ीर आला का दौरा इंतहाई कामयाब रहे। लेकिन जो सबसे अहम ज़रूरत है, ज़रूरियात ज़िंदगी में, वो पानी है। पानी की यहाँ पर जो गुजरांवाला में सूरत हाल है वो इन बंद वाटर फिल्टर प्लांट से लगाई जा सकती है कि ये ज़िले इंतज़ामिया ने ये लाखों रुपये से ये वाटर फिल्टर प्लांट तैयार किए थे, लगाए थे ताकि शहरियों को साफ़ शफाफ पानी मिल सके। लेकिन ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये टूटी खोलने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो पानी दस्तयाब नहीं। हमारे साथ कुछ ऐसे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि इन वाटर फिल्टर प्लांट में पानी दस्तयाब है? बिल्कुल नहीं है, जब कभी भी आया पानी नहीं मिला, ये बंद ही देखे हैं। इतना हुकूमत ने पैसा लगाया, इसकी सहूलत ही नहीं है, तो फिर किस लिए? उधार कोई सहूलत हो वाम को दो। ये गर्मी का मौसम, लोग आ जा रहे हैं, कहाँ से पानी पिए हैं? यहाँ और कोई इंतज़ाम भी नहीं है पानी का, सिर्फ एक ही जगह है। जी बहुत शुक्रिया। ये जो शहरी हैं उनकी बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि ये जीटी रोड पर, मेन जीटी रोड पर वस्त में शहर के ये वाटर फिल्टर प्लांट है और इसके साथ ही एक तारीखी जो है वो शेरांवाला बाग भी वाक़ है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी की अदम दस्तयाबी और वाटर फिल्टर प्लांट का बंद होना इंतज़ामिया के लिए खुला चैलेंज है। इंतज़ामिया का मुँह चिढ़ा रहा है। ताहम शहरियों ने मुतालबा किया है कि ऐसे जो शहर भर में वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं उनकी मरम्मत करके उन्हें जो है वो फंक्शनल किया जाए ताकि शहरियों को साफ शफाफ पानी दस्तयाब हो और मुज़र सेहत पानी से उन्हें छुटकारा हासिल हो सके। जी, और भी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
भूरे रीछ को देखने के लिए सयाह दियोसाई पहुंच गए। रीछ की नटखट अदाओं ने सयाहों को अपना दीवाना बना लिया है और दुनिया के बुलंद तरीन पार्क दियोसाई में सयाहों का रश भी लग गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं भूरा रीछ जो कि इस वक्त सैर कर रहा है दियोसाई पार्क की, और वहाँ पर सयाहों का अब रश लगना शुरू हो चुका है क्योंकि दूर दूर से इस भूरे रीछ को देखने के लिए लोग दियोसाई जा रहे हैं। कंदकोट सिविल अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। सीवरेज के आलूदा पानी से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे विकी ठाकर। तो विकी ठाकर बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट सिविल अस्पताल की रिहायशी कॉलोनी में। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। गट्टों और नालियों का पानी निकल कर इस कॉलोनी में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इस कॉलोनी में पानी के तालाब नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ भी फैली हुई हैं। नासमझ बच्चे इस गंदगी में खेलते हुए नज़र आते हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जब हमने मालूम किया कि यहाँ पे रहने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से हर माह इस कॉलोनी की मेंटेनेंस की मद में 5% जो कटौती की जाती है वो भी इन पर खर्च होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जबकि गुज़श्ता 20 सालों में इस कॉलोनी की मेंटेनेंस पर कोई भी काम नहीं हुआ। हमने ज़राए से मालूम किया कि इन पैसों में बहुत बड़ी करप्शन का इंकशाफ भी हुआ है। यहाँ के रहायशियों ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल इंतजामिया के ख़िलाफ़ नोटिस लेकर करप्शन की मालूमात की जाए और इस रहायशी कॉलोनी में सफाई की जाए। जी। रोड सेफ्टी में अक़लियतों के किरदार। शेखुपुरा में मोटरवे एंड ट्रेनिंग कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ और DIG मोटरवे महबूब असलम समेत क्रिश्चियन, सिख कम्यूनिटी और मोटरवे अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हादसात की सूरत हाल यही रही तो 2030 में हादसात की अमवात की तीसरी बड़ी वजह बन जाएंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करके बेशतर जानों को बचाया भी जा सकता है। DIG महबूब असलम ने क्रिश्चियन और सिख मजहबी रहनुमाओं में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। घोटकी मीरपुर माथेलो में नकासी आब के मंसूबों में करप्शन का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। सिविल जज के हमरा हुकाम का पब्लिक हेल्थ के दफ्तर पर छापा सामने आया और 4 करोड़ के करीब करप्शन की दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं सबूत के तौर पर। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं घोटकी मीरपुर माथेलो में नकासी आब के मंसूबों में करप्शन का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया है। सिविल जज के हमरा हुकाम का पब्लिक हेल्थ के दफ्तर पर छापा सामने आया और 4 करोड़ के करीब करप्शन के दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए गए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं घोटकी मीरपुर माथेलो में नकासी आब के मंसूबों में करप्शन का स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ताहिर अब्बास चौहान मौजूद हैं। ताहिर अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज घोटकी की शहर मीरपुर माथेलो में एंटी करप्शन ने सेकंड सिविल जज के हमरा जो पब्लिक हेल्थ के ऑफिस पर छापा मारा तो अपना वहाँ पब्लिक हेल्थ का जो अमला था वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। और इस हवाले से जब सर्कल ऑफिसर जो एंटी करप्शन के जो सर्कल ऑफिसर था उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 38 मिलियन रुपए की जो करप्शन थी वो पब्लिक हेल्थ की जानब से की गई थी और अवाम की शिकायत के बाद जो हाई कमान की जानब से तहकीकात के लिए जो एक कमेटी जोड़ी गई थी एंटी करप्शन की जानब से, जब उन्होंने तहकीकात की तो जिला घोटकी की जो 5 तहसीलें हैं डरकी, मीरपुर, उबाड़ो और मीरपुर माथेलो, तो उनमें जो कुएं बनाए गए थे जिसमें बारिशों का पानी और जो सेवरेज का पानी का निकाब आपके लिए, तो उसके लिए कुएं जो बनाए गए थे तो उनमें नाकस मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया था और चंद बनाए गए थे। और इसके अलावा जो करोड़ों रुपए जो बजट जो अपना रिलीज हुआ था उसके बजाय जो पब्लिक हेल्थ का जो अमला था उन्होंने जो रकम थी वो करप्शन की नजर कर दी गई। और इसके अलावा जो जनरेटर थे या जो मोटरें थी कुओं के लिए लाई गई थी वो भी अपना मंजर से गायब कर दी गई। और जब ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे ताहिर अब्बास। चकवाल में कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई गई ज़मीन पर 3 पार्क्स बना दिए गए। पार्क में खूबसूरत मॉडल्स नस्ब हैं जबकि अमरीकन ग्रॉस आराइशी अशिया ने मुज़य्यन कर दिए गए हैं। और मज़ीद तफसीलात बताने के लिए फैसल आवान हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चकवाल में कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवाई जाने वाली जगहों पे खूबसूरत पार्क तरतीब दिए गए हैं। एक पार्क जो है वो डुडियाल में बनाया गया है, जिसमें ख़वातीन का अलग पोर्शन बनाया गया है, बच्चों के लिए अलग झूलों का पोर्शन बनाया गया है। इसके साथ साथ दीगर आवाम की तफरीह के लिए अलग उसमें पोर्शन है, पार्किंग की सहूलत है, खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं। इसी तरह अगर चकवाल की बात करें तो तहसील चौक के नज़दीक एक पार्क डेवलप किया गया है, जिसमें लोगों के बैठने के लिए, आवाम की तफरीह के लिए जो है वो अशिया जो है वो फराम की गई हैं। इसी तरह अगर तीसरे पार्क की बात करें तो ये रावलपिंडी फाटक पे एक पार्क खूबसूरत बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स नस्ब हैं, जिसमें आवाम के बैठने के लिए हट्स बनाए गए हैं, बेंचेस लगे हैं, अमेरिकन ग्रास यहाँ पे लगाया गया है, मुख्तलिफ तरह के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये तीनों पार्क जो हैं ये ज़िला इंतज़ामिया ने निजी शोबे के तावन से जो हैं वो डेवलप किए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर पुराने पार्क थे उनकी तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। इन पार्कों के क़याम से न सिर्फ कब्ज़ा माफिया से जो सरकारी जगह है उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ आवाम का जो दरीना मुतालबा था वो भी पूरा हो गया और आवाम को एक बेहतरीन तफरीह के मौके भी मुयस्सर आएंगे। जी, अलीपुर चट्टा को हाफजाबाद से मिलाने वाली मेन शाहराह सरदराज से टूट फूट का शिकार है। 7.5 करोड़ से मरम्मत के बाद भी सूरत हाल वही बरकरार है जो 7 करोड़ रुपए पहले लगाने से पहले थी। मुस्तजाब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुस्तजाब हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त रोड की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर चट्टा को हाफजाबाद से मिलाने वाली मेन शाहराह पे, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और इलाका के लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस इलाका के इस रोड पे रहने वाले एक रहायशी जो रोज़ाना की बुनियाद पर हाफजाबाद और अलीपुर चट्टा के दरमियान सफ़र करते हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी मुश्किलात ये है जी, काफ़ी अरसे से ये सड़क जो है टूटी फूटी है, इसका कोई आली माली नहीं है, ना कोई इस पर कोई पैसा लगाता है। पैसे पहले से मुदस्सर की उमरारा ने इस रोड पर लगाए थे 7.5 करोड़ रुपया और ठेका मंजूर हुआ था। 12 साल के बाद ये ठेका मंजूर हुआ और उसने ये पैसे लगाए, 1 करोड़ रुपया भी नहीं लगा, तो इसने ये रोड उसी का उसी तरह है, टूटा फूटा है। हमारा 1 मिनटों का सफ़र जो है घंटों में जाता है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी तकलीफ़ से जाते आते हैं स्कूलों में, हमें बड़ा इसका मुश्किल बनी हुई है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि ये इसको दोबारा एम्पेयर करवाए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रोड 7.5 करोड़ रुपए इस पे लगाए गए हैं, लेकिन अगर आप मौके पर देखें तो इस पर एक पैसा भी नहीं लगा हुआ। इस इलाका के रहायशियों ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न से मुतालबा किया है कि इस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि ये सफरी सहूलियात से इस्तिफ़ादा कर सकें। जी, पाक पदन शरीफ में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नमाज जुमा के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस नफरी की तादाद बढ़ा भी दी गई और साथ साथ नकलो हरकत की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए। पीने के पानी और लंगर का वसीर इंतज़ाम भी किया गया। DPO और महकमा औकाफ के हुकाम ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी प्लान भी तश्कील दिया गया है। वॉक थ्रू गेट्स पर ज़ायरीन की तलाशी भी ली जा रही है। आप देख सकते हैं मनाजिर पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नमाज जुमा के दौरान सिक्योरिटी के आज फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। चीनी ने सेंचुरी क्रॉस कर ली है, जबकि सब्जियों, फलों, दही और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शब्बीर कंबो से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शब्बीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर महंगाई की? जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में महंगाई जो है अरूज पर पहुंच गई है। महंगाई के पास जो है आम आदमी की ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार होने लगी है। अगर बात की जाए चीनी, चावल और दालों समेत दीगर अशियाए खोर्द नोश की, तो यहाँ पर दुकानदार जो है मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। हमारी जब शहरियों से इस सिलसिले में बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है दुकानदार शहर में चीनी 95 रुपये से 100 रुपये किलो और देहातों में 110 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। दीगर जो है अशियाए खोर्द नोश की कीमतें वो जो आसमान को छूने लगी हैं। उनका कहना था कि इंतज़ामी जो है नुमाइंदा यहाँ पर अफसरान कहीं पर भी कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आता है। ज़िला कंबर शहदाद कोट के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोट से मुतालबा किया है कि कंबर शहदाद कोट ज़िला में प्राइस कंट्रोल
कमेटियों को फ़ाल करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके। जी। सियालकोट में गुरुद्वारा बाबे दी बेरी में सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब की तकरीब हुई और सैकड़ों साल पुराना नुस्खा कम्युनिटी के हवाले किया। ये नुस्खा गुजरात के एक मुसलमान ख़ानदान के पास महफूज था जिसे सिख कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब का ये नुस्खा ज़ियारत के लिए यहाँ रखा गया है और इस मौके पर सिख कम्युनिटी ने मुसलमान ख़ानदान का शुक्रिया भी अदा किया है। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि चीचावतनी म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बाइस शहर का सबसे बड़ा पार्क आवारा कुत्तों की अमाज का बन गया है। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात पर शहरी फट पड़े हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि चीचावतनी म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बाइस शहर का सबसे बड़ा पार्क आवारा कुत्तों की अमाज का बन गया है। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात पर शहरी फट पड़े हैं। उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। जो इस वक्त बड़ा पार्क है वो कुत्तों की अमाज का बन गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पार्क की देखभाल के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस पर शहरी जो हैं उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। को बताते हैं कि सवात की मसरूफ़ तरीन शाहराह मैंगोरा बाईपास पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है और सयाहों की आमदोरफ्त हर वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे और सूरत हाल से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी। तो अब्दुल्ला बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मैंगोरा बाईपास पर मौजूद हूँ और ट्रैफिक जाम होना यहाँ पर रोज़ का मामूल बन चुका है क्योंकि तकरीबन ये चारों अतराफ से यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो जनजक है वो यहाँ पर ही जमा हो जाता है क्योंकि दरिया स्वात की उस पर तकरीबन 7.5 लाख आबादी है और वो यही रूट मैंगोरा शहर को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर मुकामी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अगर दरिया स्वात के दोनों अतराफ जो है ना ब्रिज कायम कर दिए जाए, एक मामबेरे के मुकाम पर, एक हज़ारा के मुकाम पर, तो इससे जो ट्रैफिक का जो संगीन मसला है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हल हो सकता है। यहाँ पर आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि सयाह भी यही रूट इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ जो स्कूल की तलबा है या जो अस्पताल को मरीज़ ले जाने का जो यही भी एक वाहिद रास्ता है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो लोगों ने यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके दोनों तरफ ब्रिजेस कायम कर दी जाए, तो इससे जो ट्रैफिक का जो संगीन मसला है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जी। सियाहती सीज़न ख़त्म होने के करीब है और सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है। देवसाई, शंग्रेला और मुख्तलिफ़ जगहों पर मकामात में सयाहों की चहलकदमी इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलशाद हादी से। दिलशाद हादी, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत की? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में जो सयाहत का सीज़न है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो सयाहती मकामात है वहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद अभी मौजूद है और मज़ीद भी जो मुल्की सयाह हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं यहाँ के सयाहती मकामात की तो दिवसाई में बहुत ज़्यादा सयाह इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर शंगिला समेत जो दीगर सयाहती मकामात है वहाँ पर भी सयाहों की काफ़ी रश जो है वो मौजूद है। इस साल यहाँ पर जो सयाह है वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा मुतवक्कित है, बहुत ज़्यादा सयाह यहाँ पर आने थे, लेकिन एंड सीज़न के टाइम पर यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो सयाहती मकामात है वो मुकम्मल बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सियाहत से वाबस्ता अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ पर सयाहत जो है वो बिल्कुल मुतासिर हुआ, लेकिन सीज़न के आखिर में यहाँ पर जो सयाहती मकामात थे वो सयाहों के लिए खोल दिए गए और यहाँ पर जो मुल्की सयाह हैं उनकी बड़ी तादाद तो पहुँच गई, लेकिन यहाँ पर जो गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद आनी थी वो नहीं पहुँची। उसमें जो कोह पहमात है वो भी बड़ी तादाद में सालाना पहुँच जाते थे, लेकिन इस साल जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से यहाँ पर जो गैर मुल्की सयाह हैं वो नहीं आए और कोह पहमा भी यहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से जो पहमाई के शोबे से मुंसलिक अफराद हैं वो अब भी मुतासिर हैं और यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने जो सयाहती मकामात हैं उन पर उनमें भी SOPs जो है वो बताए हुए हैं सयाहों को। वो SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ के जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पर सैर सपाटा कर सकते हैं और जो यहाँ के सयाहती मकामात है वहाँ पर SOPs को सख्ती से लागू किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ के सयाहती
सयाहत का जो शोबा है उनकी जानिब से एक डिटेल्स हमें मिली है, जिसके मुताबिक अभी तक यहाँ पर 1.5 लाख के करीब जो मुल्की सयाह हैं वो पहुँच चुके हैं, लेकिन जो गैर मुल्की सयाहों की तादाद है वो बहुत कम है। अभी तक जो डिटेल्स हमें मिली हैं उसके मुताबिक 500 के करीब जो गैर मुल्की सयाह हैं वो भी गिलगित बल्तिस्तान सैर के लिए आ चुके हैं। जी, चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हुकाम की गफलत के बायस पब्लिक पार्क लावारिस हो गए हैं और पार्क में गधों, कुत्तों और दीगर माल मवेशियों का बसेरा है। कीमती पौधे और घास भी गायब हो गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, सूरत हाल से आगाह करेंगे आमिर सदीकी। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुताल्लिका अरबाब इख्तियार की मुबैना गफलत के बायस ज़िला चिन्योट के सबसे बड़े इलाके महल्ला दिल खुशाब में शहरियों के लिए जो पब्लिक पार्क बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है, लावारस हो चुका है। यहाँ पर जो है वो जो कीमती पौधे थे, बरकी आलात थी और जो स्टे एरियाज़ थे, जो बेंचेस थे, वो सारे मुकम्मल तौर पर टूट फूट के शिकार हैं। बुरे हालात हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। जो आहनी जंगला लगाया गया था वो भी टूट फूट का शिकार है, जबकि कुत्तों, गधों और दीगर माल मवेशियों ने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अपना बसेरा किया हुआ है। लीगी MPA MNA कैसर अहमद शेख की जानिब से जो खुसूसी ग्रांट इस पार्क के लिए ली गई थी, अब वो ग्रांट भी कहीं लगी हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि शहरी हलकों का कहना है कि ये पार्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर दीगर जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से इस पार्क पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद और वीरान होकर रह गया है। और यहाँ पर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया है कि इस पार्क की बहाली और इसके तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया जाए और यहाँ पर खाकरोब समेत दीगर जो मुलाजमीन हैं उनकी तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि ये पार्क आबाद हो सके। जी, सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में अरसा दराज से रेलवे ट्रैक मुअत्तल है। शहरी सफ़र के लिए सस्ती ट्रेन सहूलत से महरूम हो गए हैं और कब्ज़ा माफिया ने रेलवे लाइन उखाड़कर कीमती प्लाटों पर कब्ज़ा कर लिया है। जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में अरसा दराज से रेलवे ट्रैक मुअत्तल होने के बायस सिंध बलूचिस्तान के 4 अजला लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, झटपट और जेकाबाद के लाखों अवाम इस रेलवे ट्रैक पर सब ट्रेन गाड़ी की सस्ते सफ़र करने से जो है महरूम है। इसके साथ अगर बात की जाए रेलवे ट्रैक मुअत्तल होने से यहाँ पर कायम रेलवे स्टेशन वीरान होकर भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक की जो पटड़ियाँ कई जगह से उखड़ चुकी हैं। वो रेलवेज़ के करोड़ों रुपए मालियत के प्लाटों पर जो है कब्ज़ा माफिया ने डेरे जमा लिए, पुख्ता घर कायम कर लिए हैं। जब हमारी सिलसिले में शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, इस रेलवे ट्रैक पर उन्होंने ट्रेन गाड़ी नहीं देखी है। नौजवान नस्ल का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेन की जो सायरन और टीटी की सीटी की आवाज़ जो है सुनने को जो है तरस गए हैं। ज़िला कंबर शहदाद कोट के अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद से मुतालबा किया है कि कंबर शहदाद कोट ज़िला में रेलवे ट्रैक को फौरी तौर पर बहाल करके सस्ते सफ़र की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। जी, हासिलपुर ता बहावलपुर वन वे में हालिया बारिशों की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। महकमा हाईवे और इंतज़ामिया सूरत हाल पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर ता बहावलपुर वन में रोड में हालिया बारिशों की वजह से वन वे किनारों पर गड्ढे पड़ गए हैं और ये गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं और अब तक कई ट्रैफिक हादसात रूनुमा हो चुके हैं, मगर महकमा हाईवे और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और इन गड्ढों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। इस रोड के ऊपर कराची से लेकर लाहौर तक हैवी ट्रैफिक गुजरती है। अरबों रुपए से ये तैयार हुआ रोड जो है इसकी सैडें बारिशों की वजह से बिल्कुल तबाह हो रही हैं। महकमा हाईवे वालों ने अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जो इसको मरम्मत के लिए बिल्कुल कोई खातिरख्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया। लिहाजा आला हुकाम से अपील है कि फौरी तौर पर इनकी इस साइडों को मरम्मत किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे रूनुमा होने से बचा जा सके। जी, जैसा कि शहरी का कहना था कि इस वन वे रोड से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों को हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। महकमा हाईवे और इंतज़ामिया की मिली भगत से करप्शन करते हुए रोड के किनारों को पुख्ता नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से किनारों में गड्ढे पड़ गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बारिशों की वजह से पड़ने वाले गड्ढों को भी ख़त्म किया जाए। जी,
حاصلپور کے بعد اب رخ کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں کا، جہاں پر نواحی علاقے جلال پور بھٹیاں کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اظہر حسین سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پنڈی بھٹیاں کے نوائی علاقہ جلال پور بھٹیاں میں، جہاں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر بلدیہ جلال پور بھٹیاں کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی یہ بالکل ٹی ایم اے ملازمین کی ناقص کارکردگی ہے، جس وجہ سے چاروں طرف آپ کو گندگی کے ڈھیر لگے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعفن پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اعلیٰ حکام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہے یہ جلد از جلد اٹھوایا جائے۔ جی جیسا کہ شہری کے کہنا ہے کہ گندگی کے یہ ڈھیر اگر جلد نہ اٹھائے گئے تو شہریوں کے لیے ان سے اٹھنے والا تعفن مزید وبال جان بن جائے گا۔ اگر انتظامیہ نے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی بہتر حل نہ نکالا تو اس سے پیدا ہونے والی وبائی امراض جو ہے ان کا پھوٹنے کا خطرہ ہے۔ جی دورہ جدید میں لیا میں بعض علاقے بجلی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس علاقے کو ترجیح ہی نہیں دی گئی، حکمرانوں کا ایک بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، وقار آوان۔ جی بالکل میں موجود ہوں لیا کی تحصیل کروڑ لالیسن کے موضع دوچرخہ نشیب میں۔ اس جدید دور میں بھی اس علاقے کو محروم رکھا جا رہا ہے بجلی کے حوالے سے، اور یہاں پہ حکومت کی جانب سے جو حکمران ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں ان کی جانب سے ووٹ لینے سے پہلے جو ہے وعدے تو کیے جاتے ہیں، پھر وعدے جو ہے آج تک اس علاقے کو وفا نہیں کیے جا سکے۔ یہاں کے جو ایم این اے عبد المجید خان نیازی، ان کی جانب سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس علاقے کو جو ہے بجلی مہیا کی جائے گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ کم از کم اس علاقے کو ترجیح دے کر بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اور علاقے کا یہی کہنا ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا علاقہ جو ہے اس علاقے کو ترجیح نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر ہمیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً ہمارے 2000 سے زائد جو ہے ووٹ ہیں، ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کو حکمرانوں کو بنا کر آگے آتے ہیں، اور پھر ہمارے سے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن